So, okay, good morning to all. Today class basically focus on the two quadrant chopper. Two quadrant chopper. So, in the last classes already we have discussed about the chopper, basic principle of chopper and the types of chopper. You know that a step up chopper, step down chopper, and also the class A and class B like that. That types of chopper the last classes I have discussed already. So, okay, today, basically the focus on the class, the two quadrant means type C chopper and type D chopper. And the last one that is the type E chopper, that is the four quadrant operation of the chopper. Actually, basically, you know that the class is going on for the drives. So this is the chopper control separately excited DC motor. So chopper control DC motor. So first you know the basic of the chopper. What is the working of the chopper and different types of the chopper. Then you just connect the motor and you just operate the motor for the different modes of operation. You know that the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, and for the two quadrant operation and also the four quadrant operation. So the class, the today class, so write down all of you that the today class that is two quadrant, two, two quadrant. That is two quadrant means second quadrant, first quadrant. So you know the basic meaning of first quadrant, two quadrant means that operate in the two quadrant means suppose first or second, suppose first and fourth like that. Okay, so two quadrant type A chopper or type C chopper, type C chopper, type C chopper. See here, two quadrant type A chopper or this is also called type C chopper. So first thing you should know the basic circuit of this type C chopper. How many switches are required for this and also diode or freewheeling diode like that. So in the last classes already discussed now type A and type B chopper. So type C chopper is basically the connecting type A and type B chopper in parallel. In type C chopper, simply this type of chopper, this type of chopper is obtained by connecting type A and type A and type B chopper in parallel. सो यदि आप लोग टाइप ए एंड बी चॉपर की क्लास जो है नहीं किए हैं तो YouTube में वीडियो अपलोड है, उसमें जाकर के आप लोग टाइप ए टाइप बी को समझ सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर को समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक को चॉपर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के सारी क्लासेस समझ में आएगी। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो टाइप सी चॉपर है। इसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन से हम लोग का टाइप ए एंड का और टाइप बी का, ए एंड बी का दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो व्हाट इज द सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस फॉर दिस चॉपर। सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस को समझना जरूरी है। तो हियर सी बेसिकली हाउ टू कनेक्ट, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो सी हियर दिस इज one of the chopper here, this is the second chopper here, this is one of the diode,
This is one other, this is diode, that is also FD, freewheeling diode. This is the inductor. This is the output terminals. So this is the configuration. This is one chopper. This is the second chopper, CH1. लास्ट क्लासेस में यदि आप लोग किए हैं तो आप लोग को लास्ट क्लासेस जो भी किए हैं वो लोग आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें. So D2, and now this is the FD, freewheeling diode. Now this across voltage, that is the V0 output voltage, positive negative. Now this is the one, the inductor. This is the output current. This is the EMF source. Now here the source voltage, the positive negative, positive negative. Okay, now this is the source current I. Okay, so this is the two quadrant type C chopper. Basically this is what, this is type C chopper configuration. Type C chopper, type C chopper. So two quadrant operation means ये basically first quadrant और second quadrants में operation होता है. तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि कैसे ये वर्क करेगी, इस चॉपर में हम लोग कैसे वर्क करेंगे. तो चॉपर को बेसिकली किस तरह से हम लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग एट ए टाइम ओनली वन चॉपर विल वर्क. वी कांट साइमल्टेनियसली हम लोग इसको ऑन नहीं कर सकेंगे. ये चॉपर एट ए टाइम पे सिर्फ हम लोग एक ही चॉपर को ऑन रखेंगे, ठीक ना. इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन में चॉपर जो है CH1 एंड CH2 जो है कि सिंपली हम लोग इसमें हम लोग एक टाइम पे ऑन नहीं करेंगे. एट ए टाइम ओनली वन चॉपर विल वर्क, ठीक है. सो सबसे पहले यदि पहला केस यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला केस में यदि हम लोग CH1 को वर्क कराते हैं, CH1 को यदि हम लोग ऑन करते हैं, CH1 फर्स्ट केस में यदि हम लोग क्या करते हैं, CH1 को ऑन करते हैं. सिंपली फर्स्ट यू जस्ट टर्न ऑन द CH1 को यदि ऑन करते हैं, फर्स्ट में टर्न ऑन CH1 को यदि ऑन करते हैं तो व्हाट विल हैपन, सी हियर. यदि हम लोग इस चॉपर को यदि ऑन कर देते हैं, सपोज दैट इसको ऑन कर दिया है ना, तो देखो यहाँ से जो करंट है, सी हियर, दिस करंट हम लोग का करंट फ्लो करेगा ऐसे ऐसे. देखो देख सकते हो, इधर तो ऑफ, इधर नहीं जाएगा करंट, इधर से होते हुए करंट जाएगी. देख सकते हो इधर से, देखो ध्यान से, करंट फ्लो करेगी इस टाइप से, इस टाइप देख सकते हो करंट ऐसा फ्लो करेगी, है ना. यदि हम लोग इस चॉपर को ऑफ है अभी, तो हम लोग का जो करंट CH1 को यदि हम लोग सिंपल ऑन करते हैं तो करंट का डायरेक्शन को देख सकते हो. करंट कुछ इस तरह से हम लोग का फ्लो करेगी, जैसे इंडक्टर से हो करके जा रही है. तो उस समय इंडक्टर क्या होगा, चार्ज, करंट जब जा रही है तो इंडक्टर क्या होगा, एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देगा. देख सकते हो इस टाइप से, इस डायरेक्शन में हम लोग का करंट का फ्लो हो रहा है. व्हेन जब चॉपर हम लोग का CH1 को हम लोगों ने ऑन किया है, ठीक है. तो यहाँ पर तो देखिए समझ में आ रहा है कि हम लोग का जो डायरेक्शन है, वोल्टेज का जो डायरेक्शन अभी हम लोग जो देख रहे हैं, वो डायरेक्शन हम लोग का क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है. वोल्टेज का डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. यहाँ पर करंट देख रहे हैं कि पॉजिटिव, समझ लो सोर्स टू लोड, हम लोग अभी जो इसमें हम लोग जो करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं, सोर्स टू लोड है, और वोल्टेज जो है हम लोग अभी पॉजिटिव है. मींस जब हम लोग CH1 को ऑन करते हैं, CH1 को, तो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो रहा है, बिकॉज हियर V and I both are positive, V and I both are positive. यहाँ पर हम लोग सिंपली देख सकते हैं, ठीक है. और उस यदि हम लोग फिर CH1 को ऑफ कर देते हैं, और फ्रीव्हीलिंग डायोड को यदि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यदि हम लोग CH1 को ऑफ कर देते हैं और फ्रीव्हीलिंग डायोड यदि है, तो उस समय क्या होगा, जो ये एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर का, देख सकते हैं उस समय फ्रीव्हील होगा. यहाँ पर ये फ्रीव्हीलिंग डायोड में, ये जो फ्रीव्हीलिंग डायोड के कारण क्या होगा, एनर्जी यहाँ पर हम लोग का जो करंट होगा, जो फ्रीव्हील होगा, ठीक है, यहाँ पर फ्लो करेगा, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से फ्लो करेगा. तो हम अभी एक एक केस को समझा रहे हैं, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कैसे कैसे हम लोग को स्विचेस को ऑन करना है, स्विचेस को ऑफ करना है. तो बेसिक ऑपरेशंस को समझने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या है स्विच ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट. ओके, लेट्स सी. तो सपोज फ्रीव्हीलिंग डायोड, यदि हम लोग फ्रीव्हीलिंग डायोड पर यदि बात करते हैं,
तो फ्रीव्हीलिंग डायोड यदि ये क्या लगा हुआ है, फ्रीव्हीलिंग डायोड है। सो इस डायोड के कारण, ड्यू टू दिस डायोड, दिस आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि द आउटपुट वोल्टेज मीन्स V naught is always positive because why? Of the presence of this FD, freewheeling diode, this one. Suppose that हम लोग का चॉपर CH2 को ऑन कर देते, then what will happen? When we just on the CH2 on or freewheeling diode FD conduct, ये CH2 को यदि हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? समझना होगा, एक एक पॉइंट को समझना होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन जस्ट ऑन द CH2? यदि हम लोग CH2 को ऑन करते हैं तो व्हाट विल हैपन? व्हेन CH2 चॉपर 2 इज ऑन, यदि ऑन कर देंगे तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज इस समय ये तो शॉर्ट कर जाएगा इसके अक्रॉस में FD। तो इस समय जो है CH2 इज ऑन और सिंपली और फ्रीव्हीलिंग डायोड FD conducts, then what will happen? Output voltage V0 is equal to 0. Now second case, suppose CH1 is on or diode D2 conduct. Next, suppose in case CH1 is on or D2 conduct, then what will happen? ये CH1 यदि हम लोग का ऑन रहता है तो उस समय जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिलेगा, then in this case V0 is equal to the source voltage। ठीक है, समझ में आ रहा है? उस समय हम लोग का जो करंट का डायरेक्शन होगा वो डायोड D2 से, ये D2 जब कंडक्ट करना शुरू कर देगा तो क्या होगा? करंट तो हम लोग का इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा। करंट जब हम लोग का D2 कंडक्ट करना शुरू करेगा तो ये कंडक्ट जो डायरेक्शन होगा I नॉट का, दैट इज लोड टू सोर्स, द लोड करंट I नॉट रिवर्स इट डायरेक्शंस, सिंपल वे। सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? सिंपल केस, द लोड करंट I नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शंस, द लोड करंट का पाथ और वोल्टेज का डायरेक्शन को देखना होगा कि हम लोग कौन स्विच को, जैसे मैंने बताया ना, कभी मैंने इसको ऑन किया तो करंट यहां से होकर के इस इंडक्टर से चार्ज होते हुए इस डायरेक्शन में जा रही है। फिर CH2 को ऑन करेंगे या FD को हम लोग ऑन कर देंगे तो शॉर्ट कर जाएगा, आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। फिर नाउ हम लोग CH1 को ऑन कर दें या फिर D2 को ऑन कर देंगे तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में करंट हम लोग का फ्लो करना शुरू करेगा। तो लोड करंट I नॉट रिवर्सेस इस डायरेक्शन, reverses its direction। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक चीज हम लोग को तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यदि हम लोग CH1, ध्यान से देखना होगा, यदि हम लोग CH1, ध्यान से देखिए, लोड करंट पॉजिटिव कब होगा? जब CH1 और फ्रीव्हीलिंग डायोड यदि हम लोग कंडक्ट हो रहा है, डायोड D2 का बात नहीं कर रहे हैं, यदि हम लोग का CH1 एंड FD कंडक्ट हो रही है तो करंट देख रहे हैं हम लोग इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। CH1 और FD का बात कर रहे हैं तो I नॉट वहां पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। और यदि हम लोग CH2 को ऑन करते हैं या D2 को यदि हम लोग ऑन कर देते हैं तो उस समय हम लोगों का करंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ से हम लोग करंट किस टाइप से जा रही है, नेगेटिव हो जाएगा उस समय। जब लोग CH2 को ऑन कर देंगे तो ये नेगेटिव है ना, CH2 को ऑन कर देंगे तो हम लोग का यहाँ से डायोड से होते हुए तो उस समय क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि CH1
एंड फ्रीव्हीलिंग डॉट FD एट ए टाइम पे काम करेगा। CH1 एंड FD ऑपरेट टुगेदर। जैसे कि हम लोग टाइप ए चॉपर के बारे में बात करते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, तो लास्ट क्लासेस में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। CH1 and FD conduct, that is the type A chopper. And now CH2 and D2 operate together, that is the type B chopper. That is the second quadrant, means voltage be positive and current is negative. So load current I naught is reverses its direction. Now, suppose तो हम लोग सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं? See here, load current positive कब है? So load current is positive when CH1 is on or FD conduct. And when load current is negative, load current is negative if CH2 is on, or D2 conducts. सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? CH1 and FD ऑपरेट टुगेदर एज टाइप ए चॉपर। सिंपल वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं? CH1 and FD operate together as type A chopper. Means first quadrant. In first quadrant. सेकंड में हम लोग क्या बोलेंगे? नेक्स्ट में कि लाइक सिमिलरली CH2 and D2 operate together as type B chopper. In which quadrant? Second, because here the current directions reverses. तो देख तो सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि हम लोग के पास ये सर्किट है, मैंने अभी कहा ना कि जैसे यहाँ पर सर्किट है, यदि हम लोग CH2 को ऑन करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि जब हम लोग CH2 को ऑन कर देते हैं, इसको जब हम लोग ऑन कर दिए तो करंट हम लोग का ऐसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, वोल्टेज डायरेक्शन भी हम लोग का पॉजिटिव है, ठीक है। यदि हम लोग डायोड D2 कब कंडक्ट करेगा? जब इसमें हम लोग का ये FD नहीं कर रहा है, तो इस FD नहीं कर रहा, तो ये एनर्जी जब हम लोग का करंट फ्लो करता है, इस समय में करंट इज फ्लो, ये हम लोग का इंडक्टर क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है चार्ज को, एनर्जी स्टोर हो रहा है इंडक्टर में, ठीक है। अब इस CH1 को यदि हम लोग ऑफ कर देंगे, तो व्हाट विल हैपन? यहां से कोई करंट नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर में, ये रिलीज करेगा एनर्जी को, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का होगा, डिकेइंग इन करंट। तो जब राइट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो करंट डायरेक्शन रिवर्स होने के कारण ये क्या होगा? लोड टू सोर्स की तरफ में जाना शुरू करेगा, लोड टू सोर्स। उस समय क्या होगा? लोड टू सोर्स। तो इस वे में हम लोग का जो CH1 और FD एट ए टाइम काम करेगा, CH2 एंड D2 कंडक्ट करेगा, बट द वोल्टेज विल ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज यार FD डायोड यहाँ पर जो है वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होगा। जो कोई भी हम लोग केस लेंगे तो आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो यदि हम लोग क्वाड्रेंट ऑपरेशंस का बात करते हैं, so here type A and type B, जैसे हम लोग type A and type B पढ़ाई किए थे, type A for the first quadrant and type B chopper for the second quadrant operation, type B, okay, type B, but type C just the combination of both type A and type B. So this is also known as what? Second quadrant, मतलब two quadrant operation. So see, this is the simple, this is the I naught, this is the minus I naught, this is the V naught, this is V naught,
So first quadrant positive means here CH1 or FD, and second one that is CH2 and D2. So this is the operation of this chopper, type C chopper, type C chopper. So here, see here again, take a screenshot of this. Just wait. So some point again, average load voltage always positive, and load current may be positive or negative. So in this chopper, load voltage always positive, but the current may be positive or negative. So power flow may be from source to load. So power flow in this chopper, simple word, power flow, power flow, power flow may be from source to load, source to load. Source to load means you know that first quadrant, first quadrant, first quadrant, or power flow source to load, then again load to source, load to source, that is second quadrant, second quadrant. Also one point, important point, that is chopper CH1 and CH2 never operate simultaneously. Some important points related to this chopper. Okay. So basically, these types of chopper configurations is used for motoring and regenerating braking of DC motor. The important point is that actually we are just using this chopper for the what? DC drives, DC control, DC motor control. हम लोग इसका स्पीड कंट्रोल के लिए जितने सारे इक्वेशंस को भी ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हम लोग इस टाइप का चॉपर, इस टाइप का चॉपर में हम लोग टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो रही है, इसमें हम लोग वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है, करंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग किस टाइप्स के हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में? मोटरिंग एंड रीजनरेटिंग ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर, दिस टाइप्स ऑफ चॉपर कॉन्फ़िगरेशन, तो दिस चॉपर is used basically is used for motoring and regenerative braking of DC motor, braking of DC motor। तो ये हम लोग का जो चॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा, जो देख रहे हैं ये टू क्वाड्रेंट टाइप है चॉपर और टाइप सी चॉपर। इसमें बस स्विचेस को हाउ टू ऑपरेट सिंपल वे में हमने सिंपली कब किस स्विच को ऑन करना है, किस चॉपर को ऑन करना है, तो हम लोग आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट क्या आ रही है, और किस चॉपर को हम लोग ऑन करेंगे तो फिर, और किस डायोड को हम लोग ऑन करेंगे तो हम लोग को वोल्टेज का रिस्पांस और करंट क्या आ रही है। अकॉर्डिंग टू दिस सिंपली वी हैव डिफाइंड दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशंस ऑफ दिस चॉपर। ये बेसिक है चॉपर का, एकदम सिंपल बेसिक वे में मैंने बताया हूं, एकदम बेसिक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो ओके, क्लियर है? सो ओके, ज्योति कुमार समझ में आ रही है सब? So type C now, the next, just wait, 1 2 3, okay. So next is the type C, after that type D chopper. So okay, type D. So again, what is the configuration? Circuit configuration.
और सभी सर्किट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्फ़िगरेशंस है, अरेंजमेंट है स्विचेस का, वो स्विचेस का अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग का जो क्लासिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग टाइप को डिसाइड करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस में. So the now next one, that is the two quadrant type B chopper. This is also called two quadrant type B chopper. Type B chopper, or also known as type D chopper. Type D chopper. Type D chopper. So okay. So in this chopper, again there is two chopper and two diode. But here one important point is that in this chopper, both the chopper operate at the same time. But in the last cases, the type C chopper, at a time only one chopper will work. That one. Okay. So see here the configuration, circuit configuration. See here, this is chopper 1 and one diode. This is another diode. And next chopper. So this is chopper 1. Now this is the load. You can connect, load means any DC motor or like that. So this is load, voltage direction, that is here V0. Or this is chopper 1. Now this is diode D1. This is diode D2, and now this is chopper 2, that is chopper 2. And now this is the source voltage, positive, negative. This is the source current IS. Now here this is the load current I naught. Okay. So this is the configuration. This is the configuration of the chopper, two quadrant type B chopper or type D chopper. Then how this is a chopper will work? So question that how this will operate. Just a minute. So okay. See here. So output voltage at a time, suppose CH1 and CH2 will work. See here. Suppose CH1 and CH2 will work. Then what will happen here? ये यदि चॉपर को ऑन कर दिया, ये मैंने चॉपर को ऑन कर दिया, डायोड नॉट कंडक्ट नाउ दिस टाइम. सो देखने में ही आ रहा है कि ये जो कंडक्शन होगा करंट का इस चॉपर से होते हुए, लोड से होते हुए, ये हम लोगों का डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं? सिंपल है. यदि ये दोनों चॉपर को एट ए टाइम में ऑन कर देंगे तो इसमें हम लोगों का जो हो रहा है देख सकते हैं यहाँ पर, जो सिंपल वे में बोल सकते हैं कि ये जो ऑन हो रहा है, ये जो करंट का डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन देख सकते हैं, मीन्स हम लोग का आई नॉट पॉजिटिव हो रहा है और इस समय हम लोग का वी नॉट भी पॉजिटिव हो रहा है. जब हम लोग दोनों चॉपर को ऑन कर रहे हैं, दोनों चॉपर को ऑन कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ये डायरेक्शन है करंट का. जब हम लोग चॉपर मतलब आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू Vs क्या आ रहा है इस समय? द आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू Vs व्हेन बोथ द CH1 एंड CH2 आर ऑन. सिंपल वे में बोल सकते हैं कि व्हेन CH1 and CH2 on, when CH1 and CH2 both are on, then what will happen? V0 is equal to Vs, means positive voltage. Okay. और यदि दोनों चॉपर को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में? सपोज दैट हम लोग नेक्स्ट केस में क्या कर सकते हैं कि सपोज हियर सी हियर, when CH1 and CH2 are turned off, but both diode D1 and D2 conduct, but D1 and D2 conduct. तब क्या होगा? उसमें हम लोग का क्या होगा?
सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सिंपली यदि हम लोग बोलेंगे कि यदि हम लोग का ये कंडक्ट हो रहा है तो क्या होगा। सो इस समय हम लोग का ये दोनों जो है कि हम लोग का टर्न ऑफ है और ये दोनों डायोड को हम लोग कंडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज विल पॉजिटिव, सॉरी, अब वोल्टेज हम लोग का ये क्या हो गया, एक मिनट, इस डायरेक्शन में हम लोग का जा रहा है, करंट सेम हो रहा है, करंट सेम हो जाएगा लेकिन हम लोग का वोल्टेज रिवर्स हो जाएगा, करंट हम लोग का सेम हो जाएगा लेकिन हम लोग का वोल्टेज रिवर्स हो जाएगा, वोल्टेज रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, जस्ट वेट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एट ए टाइम CH1 एंड CH2 को ऑन करने पर हम लोग का क्या रिस्पॉन्स मिला, एंड D1 एंड D2 को यदि हम लोग ऑन कर रहे हैं एट ए टाइम पे तो क्या हो रहा है। तो CH1 एंड CH2 को जैसे मैंने ऑन किया तो क्या हुआ, और D1 एंड D2 को ऑन किया तो क्या हुआ, वोल्टेज का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा अभी इस चॉपर में, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम यदि हम लोग का ज्यादा और कम होगा तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। टर्न ऑन टाइम, T on इज मोर देन द टर्न ऑफ टाइम, टू केस हम लोग यहाँ पर लेंगे कि टर्न ऑन टाइम को ज्यादा कर रहे हैं, टर्न ऑफ टाइम को ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, एक चीज है कि यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन हो रहा है, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर जो I0 जो है वो ऑलवेज भी पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। करंट का डायरेक्शन में रिवर्स नहीं होगा, बस ओनली वोल्टेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा। सो एट ए टाइम CH1 एंड CH2 कंडक्ट फर्स्ट बोथ द चॉपर्स, सिंपली जब बोथ द चॉपर को ऑफ कर दिए फिर बोथ द डायोड को हम लोग कंडक्ट करा दिए, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ सिंपल वे में इन्हें बता देते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। As simply average value of both V naught and I naught are positive, chopper operation in first quadrant and power flow from source to load, power flow from source to load. नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि यदि हम लोग का V0 नेगेटिव हो गया तो वही कहानी फिर से है, सेम टू सेम है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि पावर फ्लो लोड टू सोर्स हो जाएगा, यदि हम लोग का वोल्टेज एवरेज वैल्यू, यदि हम लोग का V0 इज नेगेटिव बट दैट ऑफ I0 इज पॉजिटिव, thus fourth quadrant operation of type D chopper is obtained, and power flow from load to source पावर का जो फ्लो होगा लोड टू सोर्स की ओर होगा। I0 is the V0, this is minus V0, सिंपल। ये ऑपरेशन हम लोग का टू क्वाड्रेंट में है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है किस चॉपर से, टाइप डी चॉपर से, ठीक है।
अब यहाँ पर अल्फा जो ड्यूटी रेशियो जो हम लोग बात करते हैं, चॉपर के केस में क्या होता है, ड्यूटी रेशियो टी ऑन बाय टोटल टाइम टी। सो वो अल्फा का वेरिएशंस के कारण ही हम लोग V0 का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, वो भी एक रीजन हम लोग यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि सिंपल इन केस टी ऑन इज ग्रेटर देन टी ऑफ, alpha is greater than 0.5, V0 is positive. In case T on is less than T off, alpha is less than 0.5, V0 is negative. Now, in case T on is equal to T off, V0 is equal to 0, and alpha is equal to 0, and V0 is equal to 0. V0 is equal to 0. So okay, हम लोगों ने क्या देखा कि टाइप सी एंड टाइप डी में जो ऑपरेशन हो रहा है बेसिकली टू क्वाड्रेंट्स ऑपरेशंस के लिए हम लोग देख रहे हैं। सो टाइप सी में हम लोगों ने देखा दैट इज द फॉर द टाइप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड नाउ इन दिस टाइप डी चॉपर दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ चॉपर दैट इज द टाइप ई चॉपर, टाइप ई चॉपर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर क्वाड्रेंट चॉपर दैट इज टाइप ई चॉपर, मींस चारों क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो उसमें हम लोग 4 चॉपर रहेगा और 4 डायोड रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो वेट, ओके, सो ठीक है, तुम लोग जो है कि थोड़ा सा सबको पढ़ाई कर लो चॉपर के बारे में, और जितना भी थायरिस्टर से लेके ये सब जो भी पढ़ाए थे मैंने, फेज कंट्रोल, सबका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चॉपर करेंगे और उसके बाद फिर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के केस के लिए हम लोग सारा इक्वेशंस को डेरिवेशन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। तो ठीक है, हाँ रखते हैं। यस सर। ओके, बाय लोग।